attendance. I'm presenting the screen. Okay, now once again put your attendance because the recording has just started. Samir, please put your attendance once again because the recording has just started. Sankalp, put your attendance as well. Okay, good. ठीक. So we have started this chapter, electric current to conductors, in the last class on Sunday, but we could not conduct the complete class because of network issues. Okay, so we have seen some portion, that is electric current. What is electric current? And we have one important formula. Okay, now Arya has joined, I think. Arya, please put your attendance and please try to join the meeting at least 2 minutes before. Okay, ठीक है, so कल से लेट नहीं होना है. At least 2 minutes before you should be in the class. Okay, so we have one important formula for current, that is I is equals to Q by T. And you should remember this formula. Okay, ये formula तुम्हें हमेशा याद रहना चाहिए. This is basic formula. I stands for current, Q for charge, and T for time. So I is equals to Q by T is the formula for current that we have seen in the last class. Okay, now we will see the flow of current through a conductor. A current can be generated by positively or negatively charged particles in an electrolyte. Both positively and negatively charged particles take place in conduction. So current can be generated either with the help of positively charged particles or negatively charged particles. Now how it can be generated, that we'll see. Okay, but both the particles we can use for generating current. But in an electrolyte, both the positively charged as well as negatively charged particles take place in a conduction. मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स दोनों एक साथ कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रोलाइट. तो आपने एक एक्सपेरिमेंट पिछले स्टैंडर्ड में सीखा होगा कि एक बीकर में इस तरह से सॉल्ट सॉल्यूशन रहता है, बराबर. उसमें दो इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, दिस इज वन इलेक्ट्रोड एंड दिस इज सेकंड इलेक्ट्रोड. तो इसमें से एक इलेक्ट्रोड जो रहेगा उसको हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे, एक को नेगेटिव सप्लाई देंगे. और यहाँ पे कोई तो मतलब अगर कोई मेटल मेटल रहेगा सो वो डिजोल्व होके पॉजिटिव आयंस जो है वो यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे और नेगेटिव आयंस जो है वो इस इलेक्ट्रोड के अराउंड जाएंगे. सो दिस टाइप ऑफ कंडक्शन इज बिकॉज ऑफ बोथ द चार्ज पार्टिकल्स. ओके, मतलब कि यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी फ्लो हो रहे हैं और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी फ्लो हो रहे हैं. सो दिस इज conduction because of both the charge particles. But if we talk about our conventional electricity, so the reason behind current is only one particle, that is negatively charged particle, electron. जो हमारे घर में अभी करंट है वो करंट सिर्फ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की वजह से फ्लो होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन की वजह से. ओके, सो दोनों भी जो पार्टिकल्स है वो रिस्पॉन्सिबल रह सकते हैं, ये हमारा कंक्लूजन है इसका. These electrons flow and generate a net current under the action of applied electric force. As long as a steady field exists, the electrons continue to flow in the form of steady current. Such steady electric fields are generated by cells and batteries. So अगर कोई भी कंडक्टर में हमें करंट फ्लो करना है तो what we need some electric field, and this electric field can be generated with the help of cells and batteries, and we are well aware of that. We have seen most of the examples of such type. Now sign convention, the direction of current in a circuit is drawn in the direction in which positively charged particles would move, even if the current is constituted by the negatively charged particles. Electrons which move in the direction opposite to that the electric field, we use this as a convention. Okay, so अभी यहाँ पे करंट किस तरह से फ्लो होता है ये हमें समझ के लेना बहुत जरूरी है, तभी जाके हमें इस साइन कन्वेंशन के बारे में पता चलेगा. ओके, फर्स्ट वी must understand how the current flows and then we will be able to understand the sign convention. Okay, so इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा
डेमो दिखाना चाहूंगा, इसके लिए मैं एक दूसरी टैब ओपन कर रहा हूँ, ब्लैंक पेज। ओके, just I stop my presentation, I'll present it again. Okay, see, now here is one blank page. ठीक है, सो मान लीजिए कि यहाँ पे कंडक्टर है। ओके, सो दिस इज वन कंडक्टर। अभी इसमें जो करंट फ्लो होने वाला है, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई दे दिया और यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई दे दिया। ओके, सो नेगेटिव सप्लाई से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाते हैं। ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज गोइंग लाइक दिस एंड दिस इज, सो इस डायरेक्शन में ये फ्लो हो रहे हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रॉन करंट, बट कन्वेंशनल करंट जो है दैट विल बी दिस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को मानते हैं, यही हमें बताया गया है। ओके, सो इसके अगर हम थोड़ा सा अंदर जाके देखने की कोशिश करें कि ये करंट एक्चुअल में फ्लो होता कैसे है। ओके, सो यहाँ पे अब तक हमने सिर्फ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, यानी क्या, व्हाट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, सी हमारे पास यहाँ पे दो पार्टिकल्स है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक है और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है, सबको पता है बराबर, इलेक्ट्रॉन है। ओके गुड, नाउ विच इज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट, ऐसा कौन सा पार्टिकल है पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन। सो दिस इज द मिस्टेक वी डू। ओके, यही यही प्रॉब्लम है, मतलब ये हमको सिखाया नहीं गया है या फिर हमारे सिलेबस में नहीं था। सो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको ये जो एक्स्ट्रा चीज है वो थोड़ी सी बता रहा हूँ। ओके, if you see an atom, okay, see this is an atom, and for example, okay, so this is a nucleus, this is a nucleus of an atom, and this is the first cell of the atom. Okay, sorry, I'm not presenting the screen. This is a nucleus of the atom, this is first shell of the atom, and this is the second shell of the atom. Okay, so we all know that in the nucleus which particles are present. Okay, Suraj, okay, which particles are present, protons and neutrons, we all know that. Okay, so keep one thing in mind that proton will never take place in flow of current। मतलब करंट अगर फ्लो हो रही है वो किसी भी पार्टिकल की वजह से हो, प्रोटॉन उसमें कभी भी हिस्सा नहीं लेगा। ओके, सो प्रोटॉन विल बी ऑलवेज हियर इन द न्यूक्लियस इटसेल्फ, वो न्यूक्लियस से कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। न्यूट्रॉन भी यहीं पे रहेगा। अब लेट्स कम टू द दिस आउटर शेल्स। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे बराबर। यहाँ यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है। सो इस सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी देयर इन द सेकंड शेल, 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी देयर इन द इलेक्ट्रिक शेल, करेक्ट। एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो सकते हैं बराबर, यस और नो, बताइए मुझे। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यस 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे इस एटम के सेकंड सेल जो है उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को थोड़े से अलग कलर से ड्रॉ करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स मेरे हुए। मैंने जो ग्रीन कलर में ड्रॉ किए, दीज आर माय इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो लेट अस सपोज जब इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, सो इन सब में से कोई तो एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यहाँ से, वो निकल जाएगा और वो पास होगा जिस डायरेक्शन में उसे फ्लो होना है। फॉर एग्जाम्पल वो पास हो रहा है दूसरे किसी एटम पे, यहाँ पे एक एटम है, ठीक है, तो उस एटम पे वो पास हो रहा है। सो ये जो प्लेस बची ना यहाँ पे जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ पे एक प्लेस जनरेट होगी एंड दिस प्लेस इज कॉल्ड होल। समझ रहे हो, दिस प्लेस इज कॉल्ड होल एंड दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन द कंडक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट और इन द कंडक्शन वी कैन से, मतलब ये जो जगह है जहां से इलेक्ट्रॉन गया है उसको हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कहेंगे और उसे हम होल ऐसा नाम देते हैं, HOLE होल। ओके, सो दिस होल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट। समझ रहे हो, होल की कंसेप्ट आपको समझ में आई या फिर नहीं, यस और नो, यस, ओके, सूरज को समझ में आई, वेरी गुड, ठीक है। तो अभी ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन का आपको सॉरी एक एटम का आपको मैंने एग्जांपल लेके बताया। ओके, सो अभी हम लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, लेट अस से, ओके, सी दिस इज वन आइटम इज हियर। ओके, एक ही शेल देता हूं मैं यहाँ पे, दूसरा आइटम यहाँ पे है, तीसरा आइटम जो है यहाँ पे है, चौथा आइटम यहाँ पे। ओके,
सो सी, यहां से एक इलेक्ट्रॉन आया, इधर से कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, वो यहाँ पे सेटल हो गया, यहाँ इस एटम पे सेटल हुआ है, और इस एटम का यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, यहाँ पे सेटल हो जाएगा। ओके, सो यहाँ से कहीं से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, उठ के यहाँ पे आ जाएगा। सो जो होल क्रिएट हो रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से जो होल क्रिएट हो रहा है, दैट होल इज इमीडिएटली फिल्ड बाय द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, यहाँ पे एक होल जनरेट हुआ, और वही होल जो है वो फिलअप हो गया बिकॉज ऑफ द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अभी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को जाना पड़ेगा और एक होल जनरेट करना पड़ेगा, जो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है। सो दिस इज हाउ द करंट फ्लोज। समझ रहे हो किस तरह से हो रहा है? सो बेसिकली क्या हो रहा है, यस, बेसिकली क्या हो रहा है, देखो कि यहाँ पे अभी जो एक एटम है उसमें एक होल यहाँ पे रहेगा। सी, वन होल बी देयर बिकॉज ऑफ इस इलेक्ट्रॉन, इस एटम का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे चला गया, और यहाँ पे एक होल जनरेट हुआ। तो ये जो होल है, ये होल फिलअप करने के लिए कोई भी यहाँ पे एटम अवेलेबल नहीं है। सी, यहाँ पे कोई भी एटम अवेलेबल नहीं है, सो ये होल जो है एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक होल था पहले, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया ना, सी, ये जो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आया, तो इससे पहले कहीं ना कहीं पे यहाँ पे एक होल रहा होगा, तभी जाके वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ पाया। सो बेसिकली क्या हो रहा है, देखो, ये जो होल है, यहाँ का होल, दिस होल हैज शिफ्टेड टू हियर। ओके, अगर हम थोड़ा सा सोचे यहाँ पे, तो ये जो होल है ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। समझ रहे हो? सो दीज टू पार्टिकल्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट, होल एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, या फिर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था? ओके, ठीक है, चलिए, ओके, गुड। सो दीज आर द टू पार्टिकल्स। अभी इसके बाद में अगर आपको कोई भी बोले कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कौन सा रहता है, सो यू कैन गिव आंसर एज अ होल। होल इज द positively charged particle responsible for flow of current, and electron is the obvious negatively charged particle. ओके, सो दिस इज साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, उस डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन रहेगी हमारे कन्वेंशनल फ्लो की, कन्वेंशनल करंट की। और यही जो डायरेक्शन है, जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन है हमारे होल के फ्लो होने की, मतलब हमारा होल जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ओके, सो होल की डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट ऑफ दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट हमारे करंट की डायरेक्शन रहेगी, और जो करंट की डायरेक्शन रहेगी वही होल की डायरेक्शन रहेगी। नाउ ड्रिफ्ट स्पीड, ओके, व्हाट इज दैट? ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड क्या है, देखिए कि एक कंडक्टर है, सपोज यहाँ पे, सी, दिस इज वन कंडक्टर हियर। ओके, सो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया इस एटम पे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया इस एटम पे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया इस एटम पे, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को इस तरह से मूव होते होते इस, और मतलब इस एंड में आने के लिए कितना समय लगा, दिस इज टाइम। सी, इस टाइम के हिसाब से हम उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय टाइम विल बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ रहे हो? मतलब कि उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, वो कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो कंसेप्ट है वो आप समझ पा रहे हो, तो मैं पैराग्राफ पढ़ता हूँ। ओके, सी, imagine a copper rod with no current flowing through it, that is figure 11.2 shows the schematic of conductor with free electrons in random motion. There is no net motion of these electrons in any direction. If electric field is applied along the length of a copper rod, and a current is set up in the rod, these electrons still move randomly but tend to drift in a particular direction. Their direction is opposite to that of applied electric field. Sorry. So जैसे कि हमने पिछले क्लास में देखा था कि अगर कोई एक कंडक्टर है तो उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर दैट मच फ्री के मतलब वो कंडक्टर के अंदर ही रैंडम मोशंस करने लगते हैं। ओके, लेकिन अगर उस पर्टिकुलर कंडक्टर को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई नहीं किया है, तो वो जो डायरेक्शन रहेगी उन इलेक्ट्रॉन्स की मूव होने की डायरेक्शन, वो रैंडम रहेगी।
लेकिन when we apply the electric field to that particular conductor, then the direction will be also particular, मतलब कि वो एक particular direction में ही flow करना शुरू करेंगे ना। किस तरह से वो देखते हैं हम लोग। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट ना। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो अच्छे से पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक चार्ज होता है एंड दैट चार्ज इज ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज हम कंसीडर करते हैं, और एक टेस्ट चार्ज रहता है। टेस्ट चार्ज को हम भी यहाँ पे हम टेस्ट चार्ज को भी पॉजिटिव ही मानते हैं। सो इस चार्ज की वजह से जो टेस्ट चार्ज पे फोर्स लग रहा है या फिर जो पुश कर रहा है उसको उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ओके, सो यही यहाँ पे बताया गया है कि डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, मतलब कि इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वही डायरेक्शन रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। नाउ हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से क्या लेना देना है। सी अगेन आई एम सेइंग दिस इज अ रॉड हियर, ओके दिस इज कॉपर रॉड, और मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, मतलब यहाँ मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन सॉरी पॉजिटिव फील्ड अप्लाई की, यहाँ पे नेगेटिव फील्ड अप्लाई की। ओके, सो अभी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रॉन विल बी मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, लेकिन जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है सो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये रहेगी। ठीक है, सो व्हाट वी कैन से इट इज द जो ड्रिफ्ट की जो डायरेक्शन रहती है देयर डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में डायरेक्शन रहेगी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। समझ रहे हो। अभी देखिए ये जो है ये नेगेटिव फील्ड है यहाँ पे। सो नेगेटिव फील्ड में नेगेटिव फील्ड की डायरेक्शन इस ओर रहती है। ओके, दिस इज नेगेटिव फील्ड, नेगेटिव फील्ड की डायरेक्शन इस ओर है, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस ओर है। मतलब वो हमेशा जो भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उस डायरेक्शन के अपोजिट ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। पॉजिटिव अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे सो दे विल बी ट्रेवलिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव, एंड इफ वी apply the negative field then they will travel away from negative field. Okay, so this is the direction of electric field. I hope आप लोग समझ पा रहे हो। okay? अगर समझ पा रहे हो तो ओके ओके बीच में लिखते रहिए, मुझे रिस्पॉन्स देते रहिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ओके गुड। सो the electrons under the action of applied electric field drift with a drift velocity vd। सो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd है वो कब उनको अप्लाई, मतलब वो कब उनको एक्वायर होती है, जब हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे अप्लाई करते हैं। अगर कोई कंडक्टर पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं देन दे विल गेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तो वो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली इधर उधर फ्लो होते रहेंगे, बट दे वोंट गेट द पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, जैसे कि आप इस कंडक्टर में देख पा रहे हो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन राइट की ओर, एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की ओर, लेकिन इनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। okay, so when we will apply the electric field then they will be flowing in a certain direction or in a one direction. How is the current through conductor related to the drift speed of electrons? Figure shows the part of the conducting wire with its free electrons having the drift velocity vd in the direction opposite to the electric field E। ना वो भी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और करंट का एक दूसरे के साथ में क्या रिलेशन है। सो क्या रिलेशन है, देखिए हमने क्या बोला था, करंट इज व्हाट, करंट इज Q डिवाइडेड बाय T, मतलब कि जितना चार्ज फ्लो हो रहा है उस चार्ज डिवाइडेड बाय T। तो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर ज्यादा रहेगी तो ज्यादा चार्ज फ्लो होगा इन इन सेम ड्यूरेशन, मतलब सेम ही टाइम। मान लीजिए कि यहाँ पे एक सेकंड टाइम लग रहा है, ओके, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं 100 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। ओके, सो करंट कैसी रहेगी, लेट अस फॉर एग्जांपल दिस इज 1 सेकेंड, दिस इज 100 इलेक्ट्रॉन्स, सो करंट इज 100 यूनिट्स। यहाँ पे मैं एम्पियर नहीं बोलूंगा, सिर्फ यूनिट्स बोलूंगा। ओके, यहीं पे अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाए तो कितने, मान लीजिए कि 100 इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे अगर वेलोसिटी बढ़ रही है उनकी तो 150 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 200 इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, ओके, इन 1 सेकेंड। सो करंट भी तो बढ़ेगी। सो वी कैन से करंट इज रिलेटेड टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इजंट इट? करंट इज आल्सो रिलेटेड टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, सो इट इज अज्यूम दैट ऑल इलेक्ट्रॉन्स मूव विद द सेम स्पीड vd, मतलब कि वैसे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही स्पीड से ट्रेवल नहीं करते हैं। ओके, किसी भी कंडक्टर में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करें
तो भी उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहेगी हर एक इलेक्ट्रॉन की सेम नहीं रहेगी, बट वी टेक एवरेज, मतलब कि उन सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का हम एवरेज लेते हैं और पकड़ते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन जो है दे आर मूविंग विद द सेम स्पीड। ओके, द करंट आई इज सेम थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो हमें पता ही है कि जो करंट है वो दैट इज सोली डिपेंडेंट ऑन द फ्लो ऑफ चार्ज। कंसिडर द लेंथ ऑफ वायर, लेंथ L of the wire. Let n be the number of free electrons per unit volume of the wire. Then the total number of electrons in the length L of the conducting wire is NaL. Now एक कंडक्टर हमें दिया है जिसका कि क्रॉस सेक्शन एरिया है A, और जिसमें कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर n, and the length of that conductor is L. Okay, so NaL will be the number of electrons in that volume, मतलब उस कंडक्टर का जो वॉल्यूम है उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। द टोटल चार्ज इन द लेंथ L इज, अभी टोटल चार्ज कितना रहेगा देखो, these are number of particles, this is area, this is length multiplied by E. E is what? E is the charge on electron, a single electron, उसकी वैल्यू होती है 1.6 into 10⁻⁻19, और ये जो चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए। ओके, सो दिस विल बी टोटल चार्ज, समझ रहे हो? Q is equals to N multiplied by A multiplied by L multiplied by E. सो अभी आप लोग ये फॉर्मूला लिख लीजिए, Q is equals to N multiplied by A multiplied by L multiplied by E, और इन सब का आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए कि Q यानी चार्ज है, N यानी नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दैट कंडक्टर है, L is the length of that conductor. So write down this formula and then we will move forward. Okay. Good. ठीक है, ओके चलो, ओके गुड। This is total charge that moves through any cross section of wire in a certain time interval t. So ये जो है ये टोटल चार्ज हुआ, लेकिन हमें टाइम अभी भी पता नहीं है, तो टाइम कितना रहेगा? टाइम देखिए, टाइम विल बी L डिवाइडेड बाय VD, मतलब कि L यानी लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर एंड VD की डिस्टेंस या फिर लेंथ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इज टाइम। वी नो दैट दिस इज अ जनरल फॉर्मूला। किसी भी लेंथ को अगर हम उसकी स्पीड, मतलब किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की स्पीड से हम डिवाइड करेंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा, बराबर। हमने सीखा है ना, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम और टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ये फॉर्मूला हमें पता है। सो द सिंपल फॉर्मूला इज देयर, vd is the drift velocity or speed of the particle, and L is the length of the conductor, and time is the time taken by that particle to reach from one end to another end. Now from equation 11.1 and 11.3, the current I is equals to Q by T. अभी Q की वैल्यू तो हमने अभी भी फाइंड आउट की, दिस इज NaLe and divided by T. T is L by VD. So this will be the resultant after the calculations. So drift velocity VD is equals to, drift velocity VD is equals to I divided by NaE is equals to J divided by Ne. This is also very important formula, you can write this down. VD is equals to I divided by NaE is equals to J divided by Ne. ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये सारे नोटेशन समझ में आ रहे हैं कि N इज फॉर व्हाट, A इज फॉर व्हाट, E इज फॉर व्हाट। ओके, नाउ दिस J इज फॉर व्हाट? J is called as a current density. J is a current density. Current density यानी क्या कि current divided by cross section area. Current divided by cross section area is the current density. This is also very important statement. Please write this down. J is equals to I by A is a current density. J is uniform over the cross section area of A of the wire. Its unit is ampere per meter square. So अगर हम कहीं पे भी उस कंडक्टर में अगर चेक करें करंट डेंसिटी, तो that is going to be uniform. Okay, same charge is flowing, so that's why current density is going to be uniform, and its unit is ampere per meter square. Now ampere for current I and meter square is for area, so ampere per meter square is the unit of current density and ampere is the unit of current.
Okay, so here J is equals to I by A. From equation 11.6, J is equals to NE multiplied by VD. So this is in a vector form. Okay, this is vector form. Vector form why? Because here VD, there is a direction for VD. VD की डायरेक्शन हमें यहाँ पे दी गई है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की. सो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन भी हमें यहाँ पे मिल जाएगी. सो दिस इज अगेन वन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. Write down this formula for current density, that is J is equals to NE multiplied by VD. Okay, chaliye. So now let's take one example. A metallic wire of diameter 0.02 meter contains 10 raised to the power 28 free electrons per cubic meter. Find the drift velocity for the free electrons having an electric current of 100 amperes flowing through the wire. Now अभी हमें यहाँ पे दिया क्या क्या गया है वो देखना है. ओके, सी ई दिया गया है, ई की वैल्यू दी गई है, एन की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू है तो हमें आर की वैल्यू भी मिल जाएगी और आई की वैल्यू दी गई है. और पूछा क्या है, व्हाट दे हैव आस्क्ड अस, फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. वीडी हमें निकालना है. सो वीडी के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज दिस फॉर्मूला आल्सो. ओके, या सी. सो वीडी इज इक्वल टू जे बाय एन ई. जे कैसे निकालेंगे हम? आई डिवाइडेड बाय ए. तो अब ये ए कहाँ पे दिया है? ए तो यहाँ पे हमें दिया नहीं है. सो हाउ वी कैन फाइंड आउट ए? हमें रेडियस दी गई है. उस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन है उसकी हमें अगर रेडियस दी गई है तो वी कैन फाइंड आउट द एरिया ना. एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. बराबर, पाई आर स्क्वायर. सो आर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, पाई की वैल्यू पुटअप की. सो हमने एरिया फाइंड आउट कर दिया. बाकी सब कुछ तो हमें दिया ही गया है. करंट दिया गया है, एन की वैल्यू दी है, ई की भी वैल्यू दी है, सी ई की भी वैल्यू दी है. सो व्हेन वी कैलकुलेट, वीडी इज दिस 1.9 into 10 to the power minus 4 मीटर पर सेकेंड. ओके, वीडी इज दिस मीटर पर सेकेंड. आप यहाँ पे यूनिट पे भी ध्यान दीजिए, मीटर पर सेकेंड है, मतलब कि इतने मीटर जाएगा इतने सेकेंड्स में. ओके, okay, now example 11.2. A copper wire of radius 0.6 millimeter carries a current of 1 ampere. Assuming the current to be uniformly distributed over a cross sectional area, find the magnitude of current density. अभी current density find out करनी है. करंट तो दिया गया है 1 एम्पियर और एरिया निकालना है, उसके लिए रेडियस दी गई है. सो पाई आर स्क्वायर अगर करेंगे तो रेडियस कितनी आएगी? लगभग मुझे लगता है 0.036 जो है, या आर स्क्वायर इज 0.036 मल्टीप्लाइड बाय आप करेंगे पाई एंड डिवाइडेड बाय करेंगे 1. ओके, सो दैट इज गोइंग टू बी योर करंट डेंसिटी. मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी और करंट डेंसिटी इज वन एंड द सेम. सी, यही किया है. बराबर. सो करंट डेंसिटी इज दिस, जे इज इक्वल्स टू 0.884 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. नाउ ओहम्स लॉ. ओहम्स लॉ जैसे कि हमने पिछले स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा है. द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट थ्रू अ कंडक्टर and applied potential difference was first discovered by German scientist Georg Simon Ohm in 1828 AD. This relationship is known as Ohm's law. Ohm's law. So it states that the current I through a conductor is directly proportional to the potential difference V applied across its two ends, provided the physical state of the conductor is unchanged. Now see, this is voltage, this is current, and this is the graph of let us say Ohm's law or the resistance. Okay, so for general or generally we say V is equals to IR is the Ohm's law, or R is equals to V by I, or I is equals to V by R. We can modify that as well. Okay, so V is equals to IR is the Ohm's law, and we all know that. Okay, so current is directly proportional to V. मतलब करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा. दे आर proportional to each other. Now where R is a proportionality constant and is called the resistance of the conductor, the unit of resistance is ohm. So resistance का जो unit रहता है वो ohm रहता है. If potential difference of 1 volt across a conductor produces a current of 1 ampere through it, then the resistance of conductor is 1 ampere. So as we know this, ये हमें पता है कि अगर 1 volt रहेगा डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर है तो 1 ओम का हमें रेजिस्टेंस मिलेगा. हमने ओम्स लॉ पहले के स्टैंडर्ड, इससे पहले भी हमने पढ़ा है या फिर नहीं? यस और नो? ओम्स लॉ पढ़ा है या फिर नहीं?
अगर पढ़ा है तो मुझे ज्यादा उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं, आई कैन मूव मूव ऑन विद द नेक्स्ट टॉपिक्स। ओके, ठीक है, चलिए। सो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। मतलब कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है? कंडक्टेंस होता है। एंड द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज सीमेंस और ओहम इनवर्स। सीमेंस और ओहम इनवर्स, और इसको कभी कभी महो भी बोलते हैं, MHO। ओहम का उल्टा महो, दैट इज कंडक्टेंस। ओके, नाउ example, flashlight uses 1.5 volt batteries to provide steady current of 0.5 ampere in the filament. Determine the resistance of the glowing filament. रेजिस्टेंस निकालना है, वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, सिंपल लॉ यूज करना है, और यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन से। सो दिस इज वेरी इजी एग्जांपल। नो फिजिकल ओरिजिन ऑफ ओम्स लॉ। We know that electrical conduction in a conductor is due to mobile charge carriers, the electrons. It is assumed that these conduction electrons are free to move inside the volume of the conductor. During their random motion, electrons collide with the iron cores within the conductor. It is assumed that electrons do not collide with each other. These random motions average to zero. On the application of the electric field E, the motion of electrons is the combination of random motions of electrons due to collisions and that due to electric field E. The electrons drift under the action of the field E and move in the direction opposite to the direction of the electric field E. Now यहाँ पे क्या दिया गया है देखिए, कि अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, फॉर सपोज दिस इज वन कंडक्टर। ओके, ये कंडक्टर है यहाँ पे। सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। सो इसको थ्रू दिस कंडक्टर यहाँ तक जाना है। ओके, सो इसके लिए ये जो पाथ दिख रहा है, ये पाथ इतना इजी है क्या? ये पाथ इतना इजी नहीं होता है। अभी इस कंडक्टर में इस इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से अगर यहाँ जाना है तो देर आर लॉट्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, बहुत सारे एटम प्रेजेंट है ना, तो उसको उन सब में से ड्रिफ्ट होके जाना पड़ता है। ओके, ड्रिफ्ट होके जाना पड़ता है, उसमें भी उनका किसी किसी इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन रहता है। सो दिस बिकॉज ऑफ दिस वी नीड इलेक्ट्रिक फील्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन। मतलब कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू अट्रैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल बी एबल टू ड्रिफ्ट थ्रू दिस रीजन। यहाँ से वो पास हो सके और वहां तक जा सके, इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ती है। ओके, सो इसी वजह से हमने पहले भी सीखा कि इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन रहती है। नाउ कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास subjected to electric field E. The force experienced by the electron will be F is equals to E into कैपिटल E। तो ये हमने देखा है। ओके, ये हमें पता है कि हमने लास्ट क्लास में ही देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, दैट इज F डिवाइडेड बाय E। इज इट करेक्ट? ये हमने देखा है। यू रिमेंबर दिस और नॉट? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय E। समझ रहे हो या फिर नहीं? यस, ओके, संकल्प को याद है, बाकी लोगों को याद नहीं है। यहाँ पे हम ई की जगह पे क्यू लेते थे, पिछला जो चैप्टर था उसमें हम ई की जगह पे क्यू लेते थे। ओके, सो डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ। सो force is equals to E multiplied by capital E. E is for the charge on the particle, that is 1.6 into 10 raised to the power minus 19. The acceleration experienced by the electron will be then। अभी acceleration का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर फोर्स का जो फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल्स टू होता है ma, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। सो अगर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहे तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास कर सकते हैं। फोर्स डिवाइडेड बाय मास विल बी एक्सेलरेशन, और फोर्स की जो हमारी वैल्यू है वो है ae एंड मास इज गिवन। मास इज व्हाट? मास इज द m is the mass of electron of mass is m. The type of collision with the conduction electrons undergo in such that the drift velocity attained before the collision has nothing to do with the drift velocity after the collision. After the collision, the electrons will move in a random direction but will still drift in a direction opposite to E. अभी ये जो इतनी बार कोलिजन कोलिजन बोल रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज दिस कोलिजन? कि एक इलेक्ट्रॉन है, समझ लीजिए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक एटम है, उसके साथ में पैक्ड एटम है, यहाँ पे भी एक एटम है। ओके,
फिर से यहाँ पे एक एटम है, एटम इतने में राउंड नहीं निकाल पा रहा हूँ, लेकिन समझ लीजिए कि ये राउंड एटम है, ओके। सो इसको जाना तो है, ओके। एंड यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, सो इट विल जस्ट गो हियर एंड इट विल स्ट्राइक, मतलब यहाँ पे जाके वो कोलाइड होगा, ओके। सो उससे उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो थोड़ी सी कम होगी, लेकिन इट विल स्टिल बी एबल टू फाइंड द पाथ, कि देखो मैं उसका जो पाथ है वो अलग मार्कर से ड्रॉ करूंगा। सी इट विल गो हियर इस, लेकिन यहाँ पे भी वो कोलाइड होगा, ओके। सो सिमिलरली दिस विल ट्राई टू ड्रिफ्ट फ्रॉम दिस साइड, सो यहाँ पे भी वो कोलाइड होगा। सो यहाँ फिर से वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कोलाइड होगा, लेकिन it will still find the path and it will reach here. So collisions will happen, drift velocity will change, but the particle will be still able to drift through this region. Okay, so this is what they have said in this paragraph. Okay, ठीक है. Let tau be the average time between two successive collisions. Thus, on an average, the electrons will acquire a drift velocity of a multiplied by tau, where a is the acceleration. Also, at any given instant of time, the average drift speed of electron will be vd is equals to a tau. So v is equals to a tau जो है वो आप लिख लीजिए फॉर्मूला। वैसे तो इस फॉर्मूला पे मोस्टली कोई भी एग्जांपल नहीं आएगा, ओके। v इज इक्वल टू ए टाउ पे कोई भी एग्जांपल नहीं आएगा, लेकिन फिर भी for your collection of formulas you write this down. Vd is equals to a tau. A tau is the acceleration, sorry, a is the acceleration, and the tau is the time between two collisions, okay. Time between two successive collisions. Tau is the time between two successive collisions, a is the acceleration, and vd is the drift velocity, as we know that. Okay, so I will just move ahead, where a is the acceleration given by equation 11.11. Also, at any given instant of time, the average drift speed of electron will also be vd is equals to a tau. So vd is equals to a tau is equals to ae tau divide by m. Now a की जगह पे हमने ae लिख दिया, tau by m लिख दिया। अभी एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें थोड़ी ना पता है, we don't know the acceleration, we cannot measure it as well. So how we can replace it? We can replace, हमारे पास e की वैल्यू है, कैपिटल e की भी वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू है, बराबर। और हमारे पास मास भी है उस पर्टिकुलर पार्टिकल का। सो हम इस फॉर्म में इसे लिख सकते हैं, vd इज इक्वल टू ए टाउ इज इक्वल टू e कैपिटल E मल्टीप्लाइड बाय टाउ डिवाइड बाय m. From equation 11.6 and 11.12, vd is equals to j divided by ne is equals to e कैपिटल E tau by m. ये जो है एक्सप्रेशन, ये आपने पहले भी लिखा है, j is equals to ne, okay. So this should be in your notebook, which gives E is equals to m divided by E square and tau j. J is the current density और E is equals to rho j. तो ये जो हुआ इसको हम कंप्लीट को हम डिनोट करते हैं रो से। सो राइट दिस डाउन, E is equals to m divided by E square and tau and multiplied by j. राइट डाउन दिस फॉर्मूला, और नीचे लिखिए कि रो इज इक्वल्स टू रो RHO रो इज इक्वल्स टू this value, okay. So this is important formula, question might be asked from this particular section. ये important है, लिख लीजिए इसको जल्दी जल्दी। होने के बाद में बताइए मुझे। ओके, ठीक है, गुड। तो चलिए, सो हमने रो की यहाँ पे वैल्यू निकाली। रो इज व्हाट? रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। नाउ I hope you know the difference between resistivity and resistance. Sorry, yes, resistivity and resistance. कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है ये हमें पता होना चाहिए। तो ये रेजिस्टिविटी की मदद से हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में हेल्प होती है, ओके। सो रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या है? m डिवाइडेड बाय n e square tau. So m is what? M is the mass of that particular electron particle,
n is number of electron or particles, e square, e is the charge on that particle, and tau is the time between the two successive collisions. So these all are constants. That's why rho will be also the constant, and rho is independent of e. मतलब rho और e का कोई भी कनेक्शन नहीं है. मतलब जो कुछ भी हम हमारे सर्किट में कनेक्ट करेंगे, कोई भी कंडक्टर अगर कनेक्ट करेंगे, सो उसकी रेजिस्टिविटी जो है दैट विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द अप्लाइड वोल्टेज. कि मान लीजिए कि मैंने एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया एक सर्किट में, तो मैं उसको 5 वोल्ट दूं या फिर 10 वोल्ट दूं या फिर 25 वोल्ट दूं, मैं कितना भी वोल्ट दूं, सिर्फ करंट चेंज होगा. सी करंट चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा. बिकॉज resistance is not dependent quantity on voltage, or we can say electric field here. So the externally applied electric field. Now limitations of Ohm's law. Ohm's law obeyed by various materials and devices. The devices for which potential difference V versus current I curve is slight line passing through origin, straight line passing through origin inclined to V axis, are called linear devices or ohmic devices. Resistance of these devices is constant. Several conductors obey the Ohm's law. They follow the linear IV characteristics. So अभी linear ohmic devices या फिर linear devices हम किसे कहेंगे कि जिनमें जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहे, वो चेंज ना हो. वोल्टेज कितना भी हम चेंज करें, करंट कितना भी हम चेंज करें, रेजिस्टेंस शुड नॉट बी चेंज. सो दैट इज ओहमिक डिवाइस. ओके. और नॉन ओहमिक डिवाइस कौन सा रहेगा कि जिसमें वोल्टेज और करंट के साथ साथ में रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज हो जाए. सो दैट इज नॉन ओहमिक डिवाइस. द डिवाइस फॉर विच IV curve is not a straight line as shown in figure are called non-ohmic devices. Now what is IV curve? IV curve means voltage against current graph. हम यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यूज प्लॉट करेंगे, अकॉर्डिंगली करंट की वैल्यूज प्लॉट करेंगे, और उस वैल्यूज को हम जोड़ेंगे. So that is going to be our IV characteristics or IV curve. Okay. So this is the curve that we have measured by taking the sample values of voltage as well as current. Now, so such devices, देखिए यहाँ पे जो VI कर्व है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है. अगर ये कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है, so that is non-ohmic device. And if the curve or the curve is straight line that is passing through origin, so that we can say that device is linear device or ohmic device. They do not obey the Ohm's law, and resistance of these devices is not function of V or I, that is liquid electrolytes. Okay. Vacuum tubes, junction diodes, thermistors, etc. Resistance are for such linear devices at a particular value of the potential difference V is given by. So this is again at the particular instance, कि मतलब एक particular time duration में या फिर एक पर्टिकुलर करंट की वैल्यू के लिए कितना रेजिस्टेंस रहेगा. सो हमने यहाँ पे फिर से लिमिट और डेरिवेटिव यूज किया है. ओके. सो वेन del V is the potential difference between the two values of the potential, that is difference actual voltage minus the difference and actual voltage plus difference, and del I is the corresponding change in the current. सो आपको ये ज्यादा चीजें समझने की जरूरत नहीं है. ओके. इस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा. डोंट बॉदर अबाउट इट. Now electric power and energy. Consider a resistor AB connected to cell in a circuit as shown in 11.6 with current flowing from A to B. The cell maintains a potential difference V between the two terminals of the resistor, higher potential at A and lower potential at B. Let Q be the charge flowing in time del T through the resistor from A to B. The potential difference V between the 2 points A and B is equal to the amount of work W done to carry a unit positive charge from A to B, and it is given by P is equals to W by Q. जितना वर्क लगा एक चार्ज को मूव करने के लिए, दैट इज वोल्टेज, और हम वर्क को ही लिख सकते हैं वोल्टेज डिवाइडेड बाय चार्ज. सो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है, and this is the formula that we have seen I think in the second or third chapter. Work is equals to voltage multiplied by Q. था ना वहां पे एक लीनियर फील्ड थी. तो फिर आई थिंक लास्ट चैप्टर में ही सीखा है हमने, फर्स्ट या फिर सेकंड चैप्टर में भी नहीं सीखा है.
तो अगर यहाँ पे कोई एक चार्ज है, तो उसे अगर यहाँ पे हमें मूव करना है, सो जो फील्ड हम यहाँ पे लगाएंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव उस चार्ज को मूव करने के लिए, सो दैट इज गोइंग टू बी वर्क, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज विल बी वर्क डन। ओके, सो ये हमने पिछले पिछले क्लास में नहीं, पिछले लेसन में सीखा है। सो द सेल प्रोवाइड्स द एनर्जी थ्रू द charge q to the resistor AB where the work is performed. When the charge q flows from higher potential point A to the lower potential point B, that is through a decrease in potential of value V, its potential energy decreases by an amount. Okay, so del U is equals to Q multiplied by V, that is I is equals to del T multiplied by V. सो देखिए V एज इट इज रख दिया एंड Q को हमने क्या लिखा, I मल्टीप्लाइड बाय डेल टी। ओके, सो दिस इज I मल्टीप्लाइड बाय डेल टी। एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे हम Q की वैल्यू ले रहे हैं, एक ही चार्ज कंसिडर कर रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू मूव दैट चार्ज फ्रॉम वन एंड ऑफ द रजिस्टर टू द अदर एंड, हाइयर पोटेंशियल से लेके लोअर पोटेंशियल के एंड की और हम उस चार्ज को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए कितना वर्क डन हो रहा है वो हमने उस फॉर्मूला से देखा कि W इज इक्वल टू वी क्यू या फिर क्यू वी। सो यही पे हम Q की जो वैल्यू है वो I डेल टी से रिप्लेस करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे उस Q की हमें वैल्यू मिल जाएगी उस चार्ज की, वेयर I इज द करंट ड्यू टू चार्ज Q flowing in the time del t, where will the energy go? By the principle of conservation of energy, it is converted into some other form of energy in the limit as del t is greater than 0. So see, जब ये चार्ज मूव हो रहा है, ओके, सो ये चार्ज यहाँ पे हाईली या हायर पोटेंशियल पे, ओके, दिस चार्ज इज एट हायर पोटेंशियल एंड इट विल कैरी सम पोटेंशियल एनर्जी, एंड व्हेन इट विल गो टू द negative end or the end that is at lower potential, so there will be decrease in its potential. So ये जो डिक्रीज हुआ पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हुआ उस चार्ज के, सो ये कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है वो कंज्यूम हो गई है, उसकी वजह से इस चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस आया है। ओके, सो ये जो एनर्जी है कहाँ पे चली गई, सो दैट एनर्जी इज नथिंग बट द हीट एनर्जी, मतलब कि उस रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस होगी और उस चार्ज में जो एनर्जी है वो उसको डिक्रीज करेगी, एंड देन इट विल गो टू द पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। सो दिस इज द एनर्जी, एंड पावर इज इक्वल्स टू potential energy, difference in potential energy. See, du is the differential potential energy divided by del t, that is IV. So P is equals to IV is important for you. Okay, so write down this formula. P is equals to IV, power is equals to I multiplied by V. P is equals to IV लिख लीजिए सब लोग, power is equals to IV, current multiplied by voltage, that is power. We can also say that this power is transferred by the cell to the resistor or any other device in a place of the resistor, such as a motor or rechargeable battery. Because of the presence of an electric field, the free electrons move across a resistor, and there would be an increase in their kinetic energy as they move. When the electrons collide with the ion cores, the energy gained by them is shared among the ion cores. Consequently, vibrations of the ions increase, resulting in heating up the resistance. जैसे कि मैंने बोला आपको कि वो जो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है या फिर उनके जो एनर्जी में कमी हो रही है, सो वो कमी किस वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ द कोलिजन्स, एंड बिकॉज ऑफ दोज कोलिजन्स हीट एनर्जी इज प्रोड्यूसिंग। ठीक है, मतलब जब ये पार्टिकल इस रेजिस्टेंस के थ्रू जाने की कोशिश कर रहा है, ओके, इसमें कुछ एनर्जी थी, इस इलेक्ट्रॉन में कुछ एनर्जी थी, या फिर यहाँ पे हम पॉजिटिव पार्टिकल पकड़ेंगे क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल जो है वो यहाँ से इस डायरेक्शन की ओर मूव करेगा। ओके, सो मान लीजिए कि इसी डायरेक्शन की ओर मूव करते हैं, सो ये जब रेजिस्टेंस में पास होने की कोशिश करेगा तो इसके बीच में उसे कोलिजन्स बहुत सारे होंगे, जैसे कि हमने देखा है कि कोलिजन्स किस तरह से होते हैं। ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट हियर, सो इन कोलिजन्स की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ डिक्रीज इन द potential energy of that particular
particle. Thus, some amount of energy is dissipated in the form of heat in the resistance. The energy dissipated in time interval del t is given by equation 11.18. The energy dissipated per time is actually the power dissipated and is given by the equation 11.20. So 11.18 जो है that is for energy. See, this is for energy. Q multiplied by V is the energy. Charge multiplied by volt is the energy. यहाँ पे हम del t की वैल्यू जो है वो हम निकाल नहीं सकते, del u की वैल्यू भी नहीं निकाल सकते, बिकॉज दिस इज द इंस्टेंट, मतलब कि हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उस क्वांटिटी को ऑब्जर्व करने के लिए या फिर एनालाइज करने के लिए इस del t को हम यूज करते हैं, लेकिन हम इसकी एक्चुअल में वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते. सो दैट्स व्हाई एनर्जी इज इक्वल्स टू QV. लिख लीजिए, एनर्जी इज इक्वल्स टू charge multiplied by voltage and power is equals to current multiplied by voltage. These two formulas are important for you. Okay, चलिए. So हमारे पास एनर्जी का और पावर का फॉर्मूला है. Now we have another formula for power, that is P is equals to I square R. P is equals to I square R और V square by R. So पावर के लिए हमारे पास तीन फॉर्मूलाज हैं. P is equals to IV, V square by R or I square R. So these three formulas are there for power. It is the power dissipation across a resistor which is responsible for the heating it up. For the example, the filament of an electric bulb heats up to incandescence, radiating out the heat and light. So जैसे कि हमने पहले मतलब 60 वैट के जो बल्ब थे ना येलो कलर के, सो उसमें एक टंगस्टन की वायर की कॉइल रहती थी और उस कॉइल में क्या होता था कि हीट जनरेट होती थी और वो हीट की वजह से वो कंडक्टर उसके अंदर का गर्म होता था और उसकी वजह से हमें लाइट मिलती थी. ओके, सो दैट वाज द प्रिंसिपल बिहाइंड इट कि अगर किसी भी रेजिस्टेंस में अगर हम देखिए एक ओके सी एक थोड़ा सा एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ. मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट का बैटरी अप्लाई किया. ओके, 5 वोल्ट है. यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस अप्लाई किया 2.5 का, 2.5 ओम का रेजिस्टेंस अप्लाई किया. सो ये जो बैटरी है, ये बैटरी कब तक चलेगी? अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करके रखता हूँ तो कब तक चलेगी? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा चलेगी, लेकिन कभी ना कभी तो ये बैटरी खत्म होगी. एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम दिस बैटरी विल बी डिसरिचार्ज या फिर वो खत्म हो जाएगी. ओके, सो ये एनर्जी चली कहाँ पे गई? मतलब ये 5 वोल्ट जो था ये सर्किट में यहाँ से जा रहा है और फिर यहाँ से वापस आ रहा है, लेकिन ये एनर्जी जा किधर रही है? वेयर दिस एनर्जी इज गोइंग? सो दिस वोल्टेज इज गोइंग इन द फॉर्म ऑफ हीट. हीट बन के यहाँ पे चला जा रहा है. ओके, सो दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी वी कैन से. तो जो जो कुछ हमने पिछले 2-3 पैराग्राफ में सीखा ये यही है कि यहाँ से वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, कुछ करंट बह रही है, लेकिन वो जा किधर रही है? सो दैट इज dissipating in form of heat. Okay, so take one example. An electric heater takes 6 ampere current from 230 volt supply line. Calculate the power. I दिया है, V दिया है और पावर कैलकुलेट करने के लिए बोला है. Of the heater and electric energy consumed by it in 5 hours. So power तो हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे. Okay, power is this 1.38 kilowatt. Now energy consumed it power multiplied by time. This is the formula for energy which we can derive also. Okay, power के लिए हमारे पास formula है Q. Okay, and this is power, this is for power and this is for voltage, this is for energy and this is for power. Okay, so Q को हम क्या लिख सकते हैं? Q can be written as I into T. ठीक है, सो I को मैं अगर यहाँ पे लिख दूं I into T, सो दिस इज C. Q की जगह पे मैं अगर I into T लिख दूं तो VI यानी पावर और दिस इज अ टाइम. सो पावर into टाइम, that is energy. That this is again one formula we have for energy. So टाइम कितना दिया है? 5 आवर्स दिया है. 5 आवर्स यहाँ पे पुट अप कर दिया. सो 6.9 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वहां पे कंज्यूम हुई है या फिर डिसिपेट हुई है. ओके, सो मुझे बताइए कि पावर के फॉर्मूले में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मूले में आपको कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए या फिर हम कंटिन्यू करेंगे. एनी डाउट्स रिगार्डिंग फॉर्मूला ऑफ पावर एंड फॉर्मूला ऑफ एनर्जी? नो, गुड, ठीक है.
सो इट्स अराउंड 7:54 और हम 8:30 तक आज का क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं. ओके, एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट? कैन वी कंटिन्यू टिल 8:30? ओके गुड, ठीक है. बाकी लोग बताइए. ओके, समीर, व्हाट इज द प्रॉब्लम समीर? मैंने कल भी आपको बोला था कि आपको रेडी रहना है हर रोज 1.5 घंटा क्लास के लिए. आपका क्लास 1 घंटे का है, ऐसा पकड़ के चलना ही नहीं है. ओके ठीक है, चलो. आर्य ने अभी तक रिस्पॉन्स नहीं दिया है. ठीक है. तो पावर का फॉर्मूला और एनर्जी का फॉर्मूला, इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस आएंगे. नाउ रजिस्टर, रजिस्टर के बारे में हम थोड़ा सा और सीखते हैं. रजिस्टर आर यूज टू लिमिट द करंट फ्लोइंग थ्रू द पर्टिकुलर पाथ ऑफ द सर्किट. Commercially available resistors are mainly of two types: carbon resistors and wire wound resistors. High value resistors are mostly carbon resistor. They are small and inexpensive. The value of the resistor are color coded to mark their values in ohms. The color coding is standardized by Electronic Industries Association, EIA. One such resistor is as shown in figure. So पहले तो हम रजिस्टर का जो यूज है उसके बारे में थोड़े से उसकी हम एनालिसिस करते हैं. ओके, नाउ सपोज आई हैव वन एलईडी. ओके, सो आई हैव वन एलईडी एंड ये जो एलईडी है इसकी जो करंट रेटिंग है, मतलब ये मैक्सिमम करंट जो है वो हैंडल कर सकता है लेट अस सपोज 2 एम्पियर की. वैसे तो कोई भी एलईडी जो है वो कोई भी एलईडी 2 एम्पियर की करंट हैंडल हैंडल नहीं कर सकता. उसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी रहती है एलईडीज की, रहती है मिली एम्पियर्स में. दिस इज 2 एम्पियर इज वेरी हेवी. ओके, सो एंड मेरे पास बैटरी है लेट अस सपोज 10 वोल्ट की. ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी है. तो मैं क्या करूंगा, इस रेजिस्टेंस को लगा दूंगा. तो इससे क्या होगा देखो, मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो एलईडी है इसका रेजिस्टेंस 0 है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0. सो मैं अगर यहाँ पे 5 वोल्ट 5 वोल्ट का रेजिस्टेंस, सॉरी 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूंगा. If I connect the 5 ohm resistance, then there will be current of 2 ampere. Okay, so अगर यहाँ पे इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी लेटस से 1 एम्पियर ही है, 1 एम्पियर ही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 एम्पियर का वो रेजिस्टर लगाना पड़ेगा. ठीक है, मतलब कि वैल्यू रेजिस्टर की बहुत मैटर करती है. हम कोई भी रेजिस्टर उठा के नहीं लगा सकते. वी हैव टू सी फॉर द रिक्वायरमेंट्स कि हमारा जो सर्किट है या फिर हमारा जो डिवाइस है उसके करंट रेटिंग्स क्या है, वोल्टेज रेटिंग्स क्या है, पावर रेटिंग्स क्या है. ये सब हर एक डिवाइस पे, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे उसकी करंट रेटिंग और पावर रेटिंग दी रहती है कि वो कितना मैक्सिमम करंट हैंडल कर सकता है. ओके, आपको पता है आप हमारे घर में मैक्सिमम, मतलब जो हमारे होम अप्लायंसेस है उसका जो कोई भी एक हेवी एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ के चलिए, हेवी अप्लायंस पकड़ के चलिए, तो उसकी मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी रह सकती है? हाउ मच द मैक्सिमम करंट आवर एनी होम अप्लायंस कैन कैरी? डू यू नो द वैल्यू, यस और नो? इफ यू नो द वैल्यू देन पुट द वैल्यू. कि हमारे घर में कोई भी एक अप्लायंस पकड़ लीजिए और उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी रह सकती है मैक्सिमम? ओके, एनी होम अप्लायंस इन आवर होम कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 6 एम्पियर करंट. 6 एम्पियर इज द लिमिट. 6 एम्पियर से ज्यादा कोई भी डिवाइस जो है वो रहेगा ही नहीं. ओके, दैट विल बी दैट विल बर्न इटसेल्फ, और वो जल जाएगा. हमारे घर में जो वायर्स रहते हैं ना, जो वायर्स है उन वायर्स की भी करंट कैरिंग कैपेसिटी रहती है कि अगर पर्टिकुलरली इतनी एम्पियर से ज्यादा अगर करंट हो जाए तो वो जो वायर है वो जल जाएगी, पिघलना शुरू होगी, हीट होगी, हीटअप होगी. ओके, सो दीज फैक्टर्स वी हैव टू कंसिडर. अगर मान लीजिए, ओके सो सी, हम करंट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? दिस इज अ रेजिस्टेंस, दिस इज अ वोल्टेज, एंड लेट अस सपोज दिस इज अ 5 ओम रेजिस्टेंस. तो कितनी करंट है यहाँ पे? 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, बराबर. 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है. लेकिन अगर यहाँ पे मैं कोई रेजिस्टेंस लगाऊं ही नहीं, मैं सिर्फ 10 वोल्ट कनेक्ट कर दूं ऐसा, तो क्या हो जाएगा?
हाउ मच रेजिस्टेंस इज देयर नाउ? रेजिस्टेंस कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस? बताइए। रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो है ना। मैंने कुछ भी कनेक्ट नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि मैंने जीरो कनेक्ट किया है। जीरो रेजिस्टेंस इज देयर, बरोबर। समझ रहे हो मैं जो बताना चाह रहा हूँ? एक बैटरी ली मैंने और उसके दोनों सिरों को मैंने जोड़ दिया, तो रेजिस्टेंस इज हाउ मच? यस सर, वी हैव वायर आल्सो हैज सम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज टू मच लो, मतलब कि एक रहता है मिली ओम, मेगा सॉरी माइक्रो ओम, नैनो ओम, पिको ओम, और इसके बाद में आता है एफ ओम। मतलब कि एफ को क्या कहते हैं ये भी मुझे भी नहीं पता है, पिको ओम पकड़ के चलिए। सो हमारा जो वायर रहेगा उस वायर की वैल्यू रहती है पिको ओम में, बहुत ही कम। ओके, बहुत ही कम रहती है। सो उसको हम कंसिडर करते हैं जीरो एम्पियर। सो जीरो एम्पियर यानी क्या? तो करंट कितनी होगी देखिए, आई इज इक्वल टू व्हाट, वी बाय आर। तो कितनी करंट हो रही है? वी पकड़ 10 वोल्ट और डिवाइड बाय आर इज व्हाट? सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट? इनफाइनाइट वैल्यू होगी, करंट की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। यस और नो? जीरो से अगर हम डिवाइड करते हैं, ओके, इट इज एक्चुअली नॉट डिफाइंड। ओके, v इज इक्वल्स टू आर, इट इज एक्चुअली नॉट डिफाइंड, बट इट टेंड्स टू इनफाइनाइट। ओके, अगर जब जब हम जब आप अगली स्टैंडर्ड में जाएंगे, सो इट टेंड्स टू इनफाइनाइट, मतलब ये इनफाइनाइट ही पकड़ पकड़ दिया जाता है। वैसे तो नॉट डिफाइंड है, लेकिन इनफाइनाइट पकड़ लिया जाता है। सो अगर हमारे घर के अप्लायंसेस 6 एम्पियर मैक्स हैंडल कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट कहाँ पे आया? इनफाइनाइट इज द वेरी लार्ज क्वांटिटी, इजंट इट? सो अगर आप कोई भी लाइव वायर एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे तो क्या होता है? स्पार्क होता है, बराबर। हमारे घर में जो स्पार्क होता है जिसे हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? कुछ ना कुछ जल जाता है, एक ब्लास्ट ब्लास्ट टाइप होता है छोटा सा। वो क्यों होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ this much of current is flowing, infinite current is flowing in that circuit. So that's why that occurs. Okay, so this was the few insight and the importance of resistance, मतलब resistance की importance कितनी है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई resistance है ही नहीं और हमारे पास एक सबसे छोटा resistance है, लेट अस से 0.5 एम्पियर, 0.5 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर भी वो इस करंट की वैल्यू को इनफाइनाइट से डायरेक्ट 20 एम्पियर पे ले आएगा। ओके, सी 20 एम्पियर पे ले आएगा, मतलब इतना ज्यादा इफेक्टिव रेजिस्टेंस रहता है। रेजिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जब कभी भी अगर कोई एलईडी के साथ में एक्सपेरिमेंट करो, तो मेक श्योर यू कनेक्ट वन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो भी हमें मालूम होनी जरूरी है फॉर द प्रॉपर कैलकुलेशन। मतलब कि जरूरत से ज्यादा करंट हम हैंडल नहीं करना चाहेंगे। आप इफ यू आई डोंट नो वेदर यू इफ यू नो और नॉट, for the death of a person 1 ampere of current or 2 ampere of current is enough। अगर 1 एम्पियर या फिर 2 एम्पियर करंट भी हमारी बॉडी से फ्लो होती है फॉर सम टाइम, देन इट्स इनफ टू कॉज अ डेथ। ओके, सो वी हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ करंट, हाई करंट्स। सो लेट्स कम टू द रेजिस्टेंस, दैट इज अ करंट लिमिटिंग एलिमेंट। सो इसकी वैल्यू जो है वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है? इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की दो वेज है। फर्स्ट वे इज द कन्वेंशनल मेथड on or the let us say yes conventional method we can say, and the second one is digital method। उसमें हम डायरेक्टली इस सिरे को लगाएंगे मल्टीमीटर के एक एंड पे और इस सिरे को लगाएंगे मल्टीमीटर के दूसरे एंड पे। मल्टीमीटर हमें उसकी रीडिंग दिखा देगा कि ये जो रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट किया है दैट इज ऑफ 10 ओहम। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट वे। और जो दूसरी मेथड है, मतलब कि हम उस रेजिस्टेंस पे जो बैंड ड्रॉ किए जाते हैं, दीज बैंड्स, इन बैंड्स की मदद से भी हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? देयर कैन बी 4 बैंड रेजिस्टेंस, 5 बैंड रेजिस्टेंस और इवन 3 बैंड रेजिस्टेंस। ये कलर और ये जो बैंड्स रहते हैं रेजिस्टेंस पे, ये अलग अलग टाइप के बैंड्स रहते हैं। मुझे पहले बताइए कि जब मैं रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बोल रहा हूं, तो आपके दिमाग में एक सही पिक्चर आ रहा है ना कि आपको आप कंफ्यूज तो नहीं है कि रेजिस्टेंस नाम का सब्सटेंस होता क्या है? बताइए सब सब लोग कि रेजिस्टेंस आप सब लोगों ने देखा है? हैव यू सीन द रेजिस्टेंस रेजिस्टर? ओके, ठीक है। या
सी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, दिस इज द रेजिस्टेंस। ओके, सो यहाँ पे देखिए इस रेजिस्टेंस में बैंड से अलग अलग कलर के, ओके सी, इन्हें रेजिस्टेंस कहा जाता है। सो इन बैंड्स का जो है इंपॉर्टेंस क्यों है, ये जो बैंड रहते हैं दे आर फॉर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो किस तरह से मेजर कर सकते हैं, इसी कलर कोड दिया जाता है। ओके सी, वेरी गुड। सो फर्स्ट बैंड इज देयर, सेकंड बैंड इज देयर, थर्ड बैंड इज देयर एंड फोर्थ बैंड इज लिटिल बिट फार। ओके, थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहेगा फोर्थ वाला बैंड। अगर 5 ओम 5 बैंड रेजिस्टेंस है तो फोर्थ बैंड यहीं पे रहेगा और फिफ्थ बैंड जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे ही रहेगा। सो फर्स्ट बैंड, फर्स्ट डिजिट का क्या डिनोट करता है, देखो इफ इट इज अ ब्लैक कलर बैंड, अगर ब्लैक कलर है तो पहला डिजिट पकड़िए आप 0, दूसरा बैंड जो है वो भी अगर ब्लैक ही है तो सेकंड डिजिट भी है 0, और तीसरा डिजिट भी अगर ब्लैक, सॉरी तीसरा बैंड भी अगर ब्लैक ही है तो 10⁻⁻0 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वो आ जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपको ऐसा कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा कि जिसके तीनों बैंड ब्लैक हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। ओके, इफ वी इफ वी कंसिडर फर्स्ट डिजिट, सॉरी फर्स्ट बैंड इज रेड कलर, रेड कलर का बैंड है पहला, ठीक है, तो इसका हम वैल्यू पकड़ेंगे 2। उसके बाद में दूसरा बैंड पकड़ लीजिए, ब्लैक कलर का है, दिस बैंड इज ऑफ ब्लैक कलर, सो वी विल टेक इट एज अ 0। और तीसरा जो बैंड है, दिस बैंड इज ऑफ लेट अस से ग्रीन कलर, ग्रीन कलर का है। ओके, सो हम तीसरे बैंड के लिए मल्टीप्लायर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁵ एंड दिस इज द टोलरेंस। ये जो बैंड है ये टोलरेंस का बैंड है, टोलरेंस क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सो 20 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ दिस इज द वैल्यू ऑफ दैट रेजिस्टेंस। समझ रहे हो, मतलब कि ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हुआ, दिस इज अ वेरी बिग रेजिस्टेंस। अब ये टोलरेंस बैंड क्या है, टोलरेंस बैंड की जो कलर रहेगा वो इन तीन कलर में से एक रहेगा। सी, आइदर इट विल बी गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। ओके, इसका इन तीनों में से कोई कलर रहेगा। तो टोलरेंस यानी क्या कि +or -5% टोलरेंस, या फिर +or-10% टोलरेंस, +or-20% टोलरेंस। टोलरेंस यानी व्हाट, सपोज दिस रेजिस्टर इज ऑफ लेट अस से 20 ओम ओनली, 20 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये जो बैंड है दैट इज गोल्ड कलर का बैंड है, गोल्ड कलर का बैंड यानी कि 5% टोलरेंस प्लस और माइनस। सो 5% ऑफ 20 इज व्हाट, 1। 20 का 5% होता है 1। सो मतलब कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो एक्चुअल में 20 ना होके इट माइट बी 19 to 21, +or-1 5%, +or-5%। if the band is of silver color, that means the tolerance of this resistance is 10%, 10% of 20 is 2, so इसकी वैल्यू जो है वो रहेगी 28 से लेके 22। ओके, सो दिस इज हाउ द टोलरेंस इज। ओके, तो कलर कोडिंग आप लोग समझ गए कि किस तरह से हम कलर कोडिंग की मदद से वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके गुड, चलो ठीक है। सो 0 स्टैंड फॉर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, और ये यूनिवर्सल है, मतलब आप किसी भी रेजिस्टेंस को अगर उठाएंगे, if you pick up any resistance and apply this, then you will get the actual value। okay, so इस पूरे टेबल को याद रखने के लिए जो एक ट्रिक है वो यहाँ पे दी गई है कि बीबी रॉय गोज, सॉरी बीबी राय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। अगर आप इस सेंटेंस को याद रखेंगे तो आपको ये जो सारे कलर कोड है वो याद रहेंगे। बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, सी बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, रेड, आर फॉर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, दिस वन इज आई थिंक ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट। ओके, सो दिस इज द कलर कोडिंग स्कीम। तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। सो इस तरह से आप इस कलर कोडिंग को ध्यान में रख सकते हैं। ओके, in the 4-band register color code illustrated in the above table, the first 3 bands closest together indicate the value of ohms, the first 2 bands indicate first 2 numbers, and the third band often called decimal multiplier, the fourth band separated by the space from the 3 value bands, so that you know which end of the which end to start reading from, indicates tolerance of the register। तो वो जो एक बैंड थोड़ा सा डिस्टेंस पे ड्रॉ किया गया है, what if there are 4 bands,
सो फॉर 4 बैंड्स देयर इज अ डिफरेंट कैलकुलेशन. ओके, सो यहाँ पे आपको एक और कॉलम ऐड कर दिया जाएगा फॉर द थर्ड डिजिट. ओके, फॉर द थर्ड डिजिट. और ये जो मल्टीप्लायर है ये आ जाएगा फोर्थ बैंड के लिए. ठीक है, ओके चलो. एंड द लास्ट बैंड विल बी फॉर टॉलरेंस. नाउ तो यहाँ पे कलर कोड हमें दिया गया है और उसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो येलो, वायलेट, ऑरेंज, गोल्ड दिया है. सो वैल्यू इज येलो फॉर 4, वायलेट फॉर 7, ऑरेंज फॉर 10⁻³ एंड टॉलरेंस इज गिवन दैट इज गोल्ड ±5%. ओके, सो इस तरह से हम रेजिस्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज अ रियोस्टेट? A rheostat shown in figure 11.8 is an adjustable resistor used in application that require adjustment of current or resistors in the electric circuit. The rheostat can be used to adjust potential difference between 2 points in the circuit, change the intensity of lights and control the speed of motors, etc. Its resistive element can be metal wire or ribbon, carbon film or conducting liquid depending upon the application. In hi-fi equipment, rheostat are used for volume control. So rheostat is nothing but a variable resistance. तो अभी rheostat का अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे घर में जो फैन का रेगुलेटर रहता है, रेगुलेटर, फैन का जो रेगुलेटर है, दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस. कि मतलब जब हम फैन की स्पीड बढ़ाते हैं तो एक्चुअल में क्या करते हैं, हम रेजिस्टेंस कम करते हैं. रेजिस्टेंस कम करने की वजह से करंट बढ़ेगी और जब करंट बढ़ेगी तो फैन की स्पीड बढ़ेगी. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन एडजस्ट द स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ फैन और एनी अदर इक्विपमेंट बाय चेंजिंग द करंट इन इट. सो जो हमारे घर में फैन का रेगुलेटर है, that is not rheostat. Okay, that is actually the modified version of it. Actual rheostat looks like this. अगर आप कभी लैबोरेटरी में आपकी क्लास के जाएंगे, आपकी कॉलेज के जाएंगे, तो आपको प्रॉपर रियोस्टेट देखने को मिलेगा एंड दैट विल बी एग्जैक्टली लाइक दिस. ओके, इसमें एक यहाँ पे टर्मिनल ए रहेगा, टर्मिनल बी रहेगा, टर्मिनल सी रहेगा, और ये जो कॉन्टेक्ट है ये स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है, और यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना, ये पूरा रेजिस्टिव मटेरियल है. सो अमाउंट ऑफ रेजिस्टिव मटेरियल को हम चेंज कर सकते हैं. ओके, सो विद दैट वी कैन ऑल्सो चेंज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं. ओके, चलो ठीक है. नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखो सिंपल. इफ R1 is connected, R2 is connected, then their equivalent will be R1 plus R2. सिंपली अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हुए हैं तो दोनों रेजिस्टेंस जो है उनका समेशन विल बी देयर equivalent resistance. So V1 is what, V2 is what here. V1 is actually the voltage across resistance R1 and V2 is the resistance V2 is the voltage across resistance R2. So V1 और V2 को किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक हम थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल लेके देखते हैं. वैल्यूज लेके देखेंगे तो हम ज्यादा समझ पाएंगे कि यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है. ओके, मान लीजिए कि ये जो मेरा वोल्टेज सप्लाई है दैट इज ऑफ 20 एम्पियर. ओके, सॉरी 20 वोल्ट इट इज नॉट एम्पियर. ये जो मेरा रेजिस्टेंस है ये है 3 ओहम का, और ये जो मेरा रेजिस्टेंस है ये है 2 ओहम का. ओके, आई होप यू आर एबल टू सी दिस. या सो बताइए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनेगा, 5 ओम बनेगा. बराबर, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा 5 ओम. तो कितने एम्पियर करंट फ्लो होने लग जाएगी, हाउ मेनी एम्पियर विल फ्लो, करंट विल फ्लो. रेजिस्टेंस है 5 ओम का और वोल्टेज है 20 का. सो I इज इक्वल्स टू V बाय R, दैट इज 4 ओहम, सॉरी 4 एम्पियर. 4 एम्पियर करंट बहने लग जाएगी. ठीक है, सी. तो ये जो 4 एम्पियर करंट बह रही है, ये करंट यहाँ पे भी 4 एम्पियर ही है, यहाँ पे भी 4 एम्पियर ही है, और जो वापस आएगी वो भी 4 एम्पियर ही है. करंट कभी भी चेंज नहीं होगी. ऐसा नहीं है कि यहाँ से 4 एम्पियर बह रही है तो ये 3 ओम के बाद में जाने के बाद यहाँ पे 3 एम्पियर हो जाए. दिस इज इम्पॉसिबल. ओके, कोई भी मतलब एक लाइन में अगर एक करंट बह रही है ना, सी इफ देयर इज वन लाइन हियर,
तो इस लाइन में कोई भी कंपोनेंट रहने दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी कंपोनेंट, वेदर इट इज अ रेजिस्टेंस, वेदर इट इज अ डायोड, वेदर इट इज अ कैपेसिटर, नहीं कैपेसिटर में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ओके, कैपेसिटर भी पकड़ के चल सकते हैं, या फिर इफ इंडक्टर इज देयर। सो अगर यहाँ पे 1 एम्पियर करंट है तो यहाँ पे भी 1 एम्पियर ही रहेगी और यहाँ पे भी 1 एम्पियर ही रहेगी। दैट इज द यूनिवर्सल लॉ दैट यू हैव टू रिमेंबर, ओके। सो मतलब कि कितने भी कंपोनेंट आप बीच में कनेक्ट कर दीजिए, करंट की वैल्यू एक बार जो बन गई वो बन गई, ठीक है। सो करंट की वैल्यू अगर हमें चेंज करनी है तो क्या करना पड़ेगा कि हम उस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे कर देता हूँ, लेट अस से मैं यहाँ पे 2 की जगह पे 7 कर देता हूँ, ओके, 2 ओम रेजिस्टेंस के अलावा मैं यहाँ पे 7 कर देता हूँ, ठीक है। तो जाके करंट जो है वो 2 एम्पियर बन जाएगी। 7 + 3 = 10 एंड 20/10 = 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर यहाँ पे भी बनेगी, यहाँ पे भी बनेगी 2 एम्पियर ही, यहाँ पे भी 2 एम्पियर ही बनेगी। मतलब सारे सर्किट की करंट चेंज हो जाएगी। सिर्फ मैंने यहाँ पे 7 एम्पियर चेंज किया, इसका मतलब सिर्फ राइट साइड के सर्किट की करंट चेंज हो गई ऐसा नहीं है, पूरे सर्किट की करंट चेंज हो जाएगी, ओके। सो दिस इज द लॉ फॉर करंट। नाउ जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था वो देखिए, यहाँ पे 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। सो रेजिस्टेंस है 3 ओम का। सो आर मल्टीप्लाइड बाय आई क्या होता है, या फिर आई मल्टीप्लाइड बाय आर क्या होता है, वी होता है, वोल्टेज होता है, बराबर। वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है ना। सो 2 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू दिस आर। सो 3 × 2 दैट मीन्स 6 वोल्ट इज हियर, 6 वोल्ट इज वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर R1। सो V1 की वैल्यू क्या रहेगी, 6 वोल्ट रहेगी। पोलरिटी मैंने देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव दी है, जहां से करंट एंटर होगी दैट इज पॉजिटिव, जहां से करंट बाहर निकल रही है दैट इज नेगेटिव, ओके। सो सिमिलरली देखिए 7 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसमें भी करंट कितनी फ्लो रही है, 2 एम्पियर। तो वोल्टेज कितना रहेगा बताइए, हाउ मच वोल्टेज विल बी देयर, 14 वोल्ट, बराबर, 14 वोल्ट, करेक्ट। संकल्प, समीर, आर यू गाइस गेटिंग इट और नॉट? ओके ओके गुड। सो देखिए 20 वोल्ट हमने अप्लाई किया, 6 वोल्ट ड्रॉप हुआ R1 में, 6 और 14 वोल्ट ड्रॉप हुआ R2 में। सो यानी कि वोल्टेज वोल्टेज भी जो है, सारे वोल्टेज का अगर हम समेशन करें सर्किट में, जितना हमने अप्लाई किया है उतना ही वोल्टेज हमें हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस मिल जाएगा। सो इस तरह से करंट और वोल्टेज रहता है। नाउ अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है तो सिंपली क्या होता है उनका समेशन होता है, ये पकड़ के चलिए। सी दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। बाकी आपको ये कुछ भी ना प्रूफ करने के लिए आएगा ना प्रूफ करने की जरूरत है। RS इज इक्वल्स टू R1 + R2 + R3 + R4 एंड सो ऑन अप टू RN। मतलब जितने कितने भी रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं उन सबके रेजिस्टेंस को ऐड कर दीजिए, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। नाउ पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस resistors resistors in the parallel connection, the resistors are connected in such a way that the same voltage is applied across each resistor। तो अभी पैरेलल रेजिस्टर की अगर हम कॉन्सेप्ट देखें, सी दिस इज, यहाँ पे एक वोल्टेज लगाया गया है और ये जो दो रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में किस तरह से देखो, ये रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, उसी के पैरेलल में मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया और यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज दे दिया। मतलब दोनों के अक्रॉस जो मैंने वोल्टेज दिया है वो इक्वल रहेगा, ओके। सो दिस इज द पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस और रेजिस्टर्स। सो इन दिस केस, इस केस में कैसा होगा देखो, जो करंट यहाँ पे जा रही है ना ये करंट स्प्लिट होके अलग अलग हो जाएगी। देखो मैंने आपको बोला था कि करंट चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर यहाँ पे 2 ब्रांचेस है, मान लीजिए कि ये जो करंट है यहाँ पे वो 2 एम्पियर है। सो ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि यहाँ पे 2 एम्पियर जाएगी और यहाँ पे भी 2 एम्पियर जाएगी, ऐसा नहीं होगा ना। सो दिस करंट विल स्प्लिट अप, मतलब कि 2 एम्पियर का कुछ पोर्शन बनेगा। 0.5 1.5 भी बन सकता है, या फिर 1 एम्पियर 1 एम्पियर भी बन सकता है, या फिर 1.98 बन सकता है, 0.02 भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। मतलब करंट स्प्लिट होके यहाँ से जाएगी दैट इज I1, और जो सेकंड पार्ट है दैट इज I2। अगेन यहाँ पे मिलने के बाद में करंट यहाँ पे फिर से
2 एम्पियर ही रहेगी। मतलब जितनी करंट इंटर हुई उस लूप में उतनी ही करंट बाहर आएगी। ओके, सो दिस इज फॉर करंट। नाउ रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंसेस का क्या होगा देखो, रेजिस्टेंसेस इफ दे आर इन अ पैरेलल देन व्हाट वी डू इज 1 by rp is equals to 1 by r1 plus 1 by r2. rp is for resistances in parallel. 1 by rp is equals to 1 by r1 plus 1 by r2. so इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं रेजिस्टेंसेस। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। सो पैरेलल के लिए आप फॉर्मूला लिख लीजिए। See, this is, I will zoom this for you. Write down this formula. बहुत सारा थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो थोड़ा सा ड्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए मैं वही आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि ज्यादा लोड आप पे नहीं होना चाहिए। सो राइट डाउन दिस ओनली, 1 by rp is equals to 1 by r1। ओके ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, सी, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस एंड द टोटल करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। तो अभी आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे। सो दिस इज योर जॉब टू कैलकुलेट दिस। R1 की वैल्यू दी है 3 ओहम, R2 की वैल्यू दी है 6 ओहम, R3 की वैल्यू दी है 5 ओहम और वोल्टेज है 14 वोल्ट। चलिए करिए, कैलकुलेट कैलकुलेट कीजिए, ट्राई कीजिए। चलिए मैं आपके लिए एक और आसानी कर देता हूं, ये जो पैरेलल रेजिस्टेंस है ना, इनकी वैल्यू मैं आपको कैलकुलेट करके देता हूं। ओके, सो 1/rp दैट इज 1/rp इज इक्वल्स टू 1/r1। R1 की वैल्यू क्या है, 1/3 है, प्लस R2, 1/r2 की वैल्यू क्या है, 6 है। सो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, आई थिंक इट विल बी 3 multiplied by 6, will it be, is it 3 multiplied by 6, sorry 3 divided by 6, यही आएगा। ओके, सो दिस इज 1, दिस इज 2, 1/2, मतलब कि 1/r इज इक्वल्स टू 1/2 हुआ। ओके, आंसर संकल्प ने फाइंड आउट किया है क्या, 2 एम्पियर्स। ओके, लेट्स वी विल सी। 1/rp इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 1/2 हुआ। सो rp इज इक्वल्स टू कितना हुआ, rp इज इक्वल्स टू 2 हुआ, rp इज इक्वल्स टू 2 ओहम। सो दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस। हाँ, सो ये 2 ओम हुआ और ये कितना ओम का है, 5 ओम का है। मतलब 2 और 5 मिलकर कितना होता है, 7 ओहम। सो 7 ओहम एंड वोल्टेज सोर्स इज ऑफ 14 वोल्ट। सो 14 डिवाइड बाई 7 दैट इज 2 एम्पियर। संकल्प ने जो आंसर फाइंड आउट किया है दैट इज करेक्ट। 2 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो देखिए 2 एम्पियर यहां पे भी फ्लो होगी और यहां पे भी फ्लो होगी, ठीक है। 2 एम्पियर दिस इज ऑल्सो एंड दिस इज ऑल्सो। तो मैं थोड़ा सा आपके लिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड कर देता हूं। ओके, तो मान लीजिए लेट अस सपोज ये करंट 2 एम्पियर ना होकर 3 एम्पियर है, ठीक है। फॉर एन इंस्टेंस, फॉर जस्ट आवर एक्सपेरिमेंटेशन पर्पज वी विल कंसिडर दिस एज अ 3 एम्पियर। ओके, सो अगर 3 एम्पियर है, मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूं so that you will understand the question that I am trying to ask you। यहां पे एक करंट फ्लो हो रही है I1 बराबर, और यहां पे एक करंट फ्लो हो रही है I2। सो I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या आप लोग, ट्राई कीजिए। I1 और I2 की वैल्यू क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इफ 3 एम्पियर इज एंटरिंग। सी 3 एम्पियर एंटर हो रही है और 3 एम्पियर ही आउट जा रही है, मतलब बाहर जा रही है। सो I1 और I2 की वैल्यू क्या रहेगी, करंट यहाँ पे जबकि स्प्लिट होगी ये तो फिक्स है, यहाँ पे कुछ करंट जाएगी और यहाँ पे कुछ करंट जाएगी। Try to find out. If you cannot find out, then please put no. If you are finding out, then I will wait. Can you find out I1 and I2? Yes or no? R3 is same. Doesn't matter. See, this is not in picture. ये पिक्चर में है ही नहीं। सिर्फ हमें I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। योर सर्किट इज दिस ओनली। सी तुम्हारा इतना ही सर्किट है, पकड़ के चलो, बाकी कुछ भी नहीं है। तुम्हें सिर्फ इतना दिया है कि 3 एम्पियर यहां से फ्लो हो रही है, 3 एम्पियर यहां से बाहर निकल रही है,
सो इस रेजिस्ट R3 का यहाँ पे कंसिडर मत कीजिए। सो दिस इज योर सर्किट। तो मेरा बताने का जो आपको मोटो है कि ये है, R1 की वैल्यू क्या है? R1 की वैल्यू 3 ओहम। yes, we can find parallel total parallel resistance. Okay, see, तो this is not concept related to either parallel resistance or सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जो आपकी सिलेबस में नहीं है, ये क्वेश्चन आपकी सिलेबस में एक्चुअल में नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है, इसलिए मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। सी, R1 की वैल्यू कितनी है? 3 ओम है, और R2 की वैल्यू कितनी है? 6 ओम है। तो मुझे बताइए कि किस रेजिस्टेंस में ज्यादा करंट फ्लो होगी? किस रेजिस्टेंस में ज्यादा करंट फ्लो होगी? I1 विल बी ग्रेटर और I2 विल बी ग्रेटर? ट्राई टू फर्स्ट। ठीक है, मतलब 3 ओहम वाले में करंट ज्यादा होगी और R2 में कम होगी। तो देखिए 3 to 6 कितने का रेशो है? यह अगर 1 है तो ये अगर 2 है, समझ रहे हो? 1/2 का रेशो है। मतलब इसमें अगर ज्यादा है तो कितनी ज्यादा है? R2 जो है वो R1 से दुगना बड़ा है। सी, दिस इज 3 ओम, दिस इज 6 ओम। सो यहाँ पे करंट जाएगी 1 एम्पियर और यहाँ पे करंट जाएगी 2 एम्पियर। दिस विल बी द स्प्लिटिंग ऑफ करंट। समझला? ओके, 1 एम्पियर इकडे जाणार, 2 एम्पियर वरती जाणार, आणि इकडे परत 2 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर, किती एम्पियर होणार? 3 एम्पियर होणार. सो दिस इज हाऊ द करंट गेट स्प्लिटेड. ओके, चला ठीक है. सो आई विल जस्ट वाइप दिस आउट एंड जूम दिस आउट एंड लेट मी सी. ओके, 2 एम्पियर बताया है. ठीक है, सो ये जो स्पेशल रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट है, दैट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास. ओके, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे, and we will take the physics class mostly on Saturday or Sunday. Okay, and then we will continue. Okay, bye bye for now. Chalo, leave the meeting. Yeah.